सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 6-7th क्लास। डे 1 पे हमने बहुत सिंपल सी चीज़ें देखी थी, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। बेसिक डेटाबेस क्लाइंट, डेटाबेस, इसके बारे में हमने चीज़ें देखी। सो व्हाट इज एसक्यूएल, what are the different types of queries we have, DDL queries, DML queries, uh, how do we create tables, how do we create database, projection देखा था। uh, same queries we have practiced, we have tried creating different thing, constraints देखा था हमने, where are different types of constraints we have. So I will ask you questions, then you tell me. So what is a database, Adnan? Okay, perfect. करेक्ट करेक्ट, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। डोंट वरी, ये लोग को डरो मत। ठीक है। व्हाट इज डीबीएमएस? नेक्स्ट, ऋतिक। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजिंग द डेटाबेस? Managing the queries at server side. Okay. So what all? What is database client? Hmm. Okay. Okay. So can you tell me RDBMS next? Salman, what is RDBMS? Okay. What is that? ये कर्सर कहाँ गायब हो गया यार मेरा? कैसे लेके आते, किसी को पता है? कर्सर दिखाई नहीं दे रहा मेरा। एनीवन नोस? आराम से। कम कम कम। व्हाट इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस? इधर बैठ जाओ। ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस? Data which is stored in terms of rows and columns, but number of columns are variable. Can you tell me some examples of RDMS systems? MySQL we have, Oracle we have, Postgres we have. Non-relational database, MongoDB we have. अरे आराम से तोड़ो मत। हर एक चीज टूटती है, मुझे इधर दर्द होता है। चलो। Okay. So what we have seen, what is SQL? Umair, what is SQL? What is structured query language? आपको ऐसे इंटरव्यू में ऐसे पूछते ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते ना, ऐसे ही पूछते व्हाट इज एसक्यूएल, आप बोलते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बोलो बोलो। कैन यू टेल मी सम डीडीएल क्वेरीज नेक्स्ट, श्यामल? कैन यू टेल मी सम डीडीएल क्वेरीज? So create database, drop database, create table, drop table, alter table. Can you tell me some DML queries? Someone? Insert, update, delete. Some DQL queries: select, show tables, show database, describe tables. Okay. Can you tell me someone what are the constraints? What are the constraints are there? Primary key, foreign key. फॉरेन का स्पेलिंग बताओ रे, किसको फॉरेन जाना है? मुझे नहीं जाना। शुभम। उसके बाद नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, यूनिक। व्हाट इज प्राइमरी की कंस्टेंट, गणेश?
ऑटो, हाँ ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ अच्छा कैच है, दैट इज नॉट अ कंस्टेंट एक्चुअली, इट इज जस्ट हाँ इंडेक्स ऐसे बोल सकते हो। हाँ ऑटो इंक्रीमेंट भी देखते हैं, प्राइमरी के बाद आप डायरेक्टली ऑटो इंक्रीमेंट लिख सकते हो जिससे वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्राइमरी की मतलब क्या होता है, व्हाट आर कंस्टेंट्स, कैन यू टेल मी समवन कंस्टेंट्स, रोहित, व्हाट आर कंस्टेंट्स? It limits the, it is adding the restrictions or restrictions on what type of data or limitations we can apply on the columns. Okay, so if I make a column primary key, so we apply constraints on columns or rows? We apply on columns. So what is primary key constraint? It is an unique identifier, which means that particular column should have not null values and unique values. What is foreign key constraint? If a column is made as foreign key, what happens? मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी दैट विल बी कमिंग फ्रॉम अनदर टेबल। ओके, व्हाट इज नॉट नल कंस्ट्रेंट? मतलब वहां पर वैल्यू कंपल्सरी देना पड़ेगा, सो वी हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू एक्सप्लिसिटली। डिफॉल्ट, if no value is specified while inserting, then that particular value will be inserted in that particular column. What is check? So we can apply a constraint on that particular column. So if I say that particular column should have only values in particular this range or allowed selected values, that value should be, let's say कोई gender column है, so what I want only male female, दो ही values होना चाहिए, so you can do that. अभी दूसरा कोई हो सकता है कि मेरा ID है, that value should be greater than 0, या मे बी रेंज के साथ होना चाहिए, या मे बी डेट सिलेक्शन, फ्यूचर डेट सेलेक्ट नहीं कर सकता कोई, डेट ऑफ बर्थ फ्यूचर का नहीं हो सकता, राइट? तो सो दैट रिस्ट्रिक्शन यू कैन स्पेसिफाई, करंट डेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जो भी टाइम स्टैम्प आप वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। यूनिक, इज इट कंपल्सरी टू स्पेसिफाई वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर कॉलम? नहीं है, अगर लिखते हो तो वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव सीन आफ्टर दैट? व्हाट इज डेटा प्रोजेक्शन? restricting the columns, and selection, data selection, restricting the number of rows. And what is join? Fetching data from more than one tables. So what is where clause? Can you tell me what is the use of where clause? It is used to specify condition on which basis data or records will be selected. Okay, can you tell me some aggregate functions or operators that we can use? Where में हम क्या लिखते हैं? What we specify? Where में हम मतलब condition specify करते हैं, right? So what operators we can use? Not बोलते बस, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, then mod नहीं, नॉट है आपके पास, नॉट नल भी वहां पर यूज कर सकते हो आप, इन भी लिख सकते हो आप, बिटवीन है आपके पास ऑपरेटर, एंड और है, और नॉट हो गया ऑलरेडी, इक्वल टू है ना, इक्वल टू आपका, और ये क्या है, मैंने एक और ये देखा है किसी ने?
लेस। किसी ने ट्राई किया है ये वाला? हम्म, ठीक है। सो व्हाट एल्स वी हैव सीन? उसके बाद और क्या देखा था हमने? जॉइंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वी हैव? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड आउटर जॉइन। फुल आउटर भी बोलते हैं इसे, या फुल आउटर जॉइन। सेल्फ जॉइन मतलब सेल्फ टेबल के साथ लिंकिंग होता है, सेल्फ टेबल नहीं, सेल्फ जॉइन। व्हाट एल्स वी हैव सीन? इज देयर एनीथिंग मिसिंग? ठीक। लाइक ऑपरेटर, यहां पर लाइक यहीं पर यूज करते थे हम, राइट? ऑपरेटर में लाइक, इन ऑपरेटर भी लिखा है यहां पर, यस। ओके, लिमिट हो गया, उसमें आ गया वो। हाँ, यहां पर लिमिट हो गया, ऑफसेट हो गया। ऑर्डर बाय हमने यूज किया था, राइट? ऑर्डर बाय फॉर सॉर्टिंग पर्पस, हाँ वो बाकी है। ग्रुप बाय हैविंग, यस। उसके लिए ज्वाइंस आना कंपलसरी है। और उसके पहले हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखा था कुछ। एग्रीगेट फंक्शंस क्या है? एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, सम, राइट? नाउ टुडे हमारा टारगेट है दो चीज पढ़ना है हमें, ग्रुप बाय एंड हैविंग। उससे पहले सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे इस जॉइंस के ऊपर। विल ट्राई टू फेच डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। और उसके बाद हमारा मेजर एक बचता है, दैट इज ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। So this will be the last concept for the today, and before that we'll practice some of the questions. मैं एक सिंपल एग्जांपल बताओ क्यों ग्रुप बाय और हैविंग की जरूरत पड़ती है। सो मैं आपको बताऊं कि लेट से मेरे पास, मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था कल, प्रोडक्ट और कस्टमर का, या कस्टमर या ऑर्डर का। क्या है, किधर बनाया मैंने वो? हाँ, ये ऑर्डर टेबल है आपका। दिस इज योर ऑर्डर टेबल एंड दिस इज कस्टमर। और यहां पर एक प्राइस कॉलम भी ऐड कर सकते हैं हम, लेट्स से प्राइस। प्राइस है। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी customer number 1 or all the customers, what is their total order value? एग्जाम्पल, अभी लेट से हम हर दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन, कोई भी साइट से। अभी लेट से अमेजन से हम ऑर्डर करते हैं, तो मुझे पता करना है कि अभी तक आपने साल भर 2023 में हर एक जन ने कितना पैसा खर्च किया, टोटल ऑर्डर वैल्यू कितना। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन यह है कि आप हम सबका मतलब अभी लेट से कितने हम स्टूडेंट्स, लेट से 30 लोग हैं। सो 30 वहां पर मुझे रिकॉर्ड्स दिखना चाहिए, और उसके सामने मुझे दिखना चाहिए व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑन ऑल द ऑर्डर्स। कहां पर यूज करना पड़ेगा आपको? क्वेश्चन समझा? हाँ, चलो बताओ फिर क्या करोगे आप? ठीक है, चलो बाकी लोग अभी ग्रुप बाय पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बस आपको हिंट दे रहा हूं कि ग्रुप बाय क्यों जरूरी है। सो आई हैव टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ you guys, and there I am going to put the sum of your, आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया तो वो वाला मुझे चाहिए। सो हाउ डू आई डू दैट? उसके लिए चाहिए आपको ग्रुप बाय। और मुझे और कंडीशन ऐड करना है। मुझे क्या कंडीशन ऐड करना है कि मुझे और कुछ फिल्ट्रेशन ऐड करना है, दैट आई कैन नॉट ऐड इन द
अभी मुझे क्या करना है, कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम स्टार्ट्स विद ए या समथिंग लाइक दैट, आई वांट टू डू दैट, कुछ और एक्स्ट्रा आपको कंडीशंस करना है, तो अब यहाँ पर हम यूज करते हैं हैविंग क्लॉज, ठीक है। सो विल सी दैट। तो इसका क्वेरी कैसा बनता है, अभी एज ही सेड सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट ही यूज करना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आईडी, कस्टमर आईडी, एंड देन दूसरा कॉलम क्या होगा, प्राइस, टोटल ऑर्डर वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्राइस, सम ऑफ प्राइस, और उसको हम बोलेंगे टोटल ऑर्डर वैल्यू फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर या ऑर्डर टेबल। सो लेट्स कंसीडर ऑर्डर टेबल ही हमारे पास, सो ऑर्डर टेबल एंड देन उसके बाद ग्रुप बाय आपका कस्टमर आईडी, दैट्स इट। देखते हैं, वी विल सी दैट, बट ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चंस नोट कर रहे हो राइट? आप बोलोगे मैं बाद में रिकॉर्डिंग में नोट कर लूंगा, रिकॉर्डिंग देख के। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। मैंने कल आपको स्कीमा समझाया था, व्हाट वाज द स्कीमा, वी विल यूज द सेम स्कीमा टुडे आल्सो। Okay, so this is the same schema we will be using. Now, as you know that there are 7 tables. This is your HR schema, and I told you the foreign key and everything I told you last class. So, can you tell me departments table, what are the foreign keys? और कल मैंने आपको एक क्लास जाते टाइम एक क्वेरी बताया था, व्हाट वाज दैट, मैनेजर क्वेरी। कैन एनीवन टेल मी? तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और मुझे उसके आगे प्रिंट करना है उसका मैनेजर का नाम। So manager ID is the foreign key. It is linked to the same table itself, employees, to the column. Which column it is linked to? Employee ID. अब मुझे क्या प्रिंट करना है? I want a manager list, employee name and manager name. So how do you do that? बोलो। तो यहाँ पर ज्वाइन यूज करने वाला है, तो हमने 4 ज्वाइन देखे, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, यू विल गेट ऑल द मैचिंग कॉलम्स। कोई ना दोनों के बीच में कोई एक मैचिंग कॉलम होता है, उन दोनों के बीच में जो भी मैचिंग, जिनका भी मैचिंग, 2 रिकॉर्ड्स, यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स है, तो दोनों का जो भी मैचिंग आपका जो लिंकिंग कॉलम है, दोनों में सेम एंट्री है, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, राइट। और लेफ्ट में मिलेंगे आपको सारे, you will get, when it is a left join, you will get all the matching rows as well as you will get all the left column, or for the left table all the records you will get. right में क्या होगा, मैचिंग भी मिलेंगे और राइट साइड के टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। और व्हेन इट इज अ फुल जॉइन, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स मैचिंग, नॉन मैचिंग फ्रॉम बोथ द रोज, फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है आप सेल्फ टेबल के साथ लिंकिंग बना रहे हो, एक कॉलम इज लिंक टू अनदर कॉलम ऑफ द सेम टेबल, सो दैट इज अ फॉरेन की। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कौन सा ज्वाइन यूज करना है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन या फुल ज्वाइन? इनर ज्वाइन। क्यों इनर ज्वाइन यूज करना है, कल मैंने आपको यहाँ पर एक ये भी बताया था। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप। अब दोनों में ये 2 टेबल कंसिडर करो, टेबल 1, टेबल 2, सेम टेबल ही है लेकिन 2 टेबल कंसिडर कर सकते हो। तो यहां पर जो फॉरेन की है, आर यू गाइस विद मी?
अभी दिस पर्टिकुलर की इज अ फॉरेन की, दिस पर्टिकुलर कॉलम इज अ फॉरेन की विच इज लिंक टू अनदर टेबल, मतलब सेम टेबल ही है, दिस टेबल के साथ लिंक है। तो आप इसको दो टेबल कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ दिस कंसिडरिंग टू टेबल्स। अभी दोनों में कौन सा कॉमन टेबल है? दिस इज द कॉमन टेबल, कॉमन कॉलम बोल सकते हैं। दिस इज द कॉमन कॉलम बिटवीन दीज टू टेबल्स। अभी जब इनर ज्वाइन करते हैं तब आपको जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स है दोनों में, दैट ऑल रिकॉर्ड्स यू विल गेट। तो दोनों में मैचिंग कौन कौन से रिकॉर्ड्स है? 1 and 2, 1 and 2, यू विल हैव 1 and 2। अब मुझे पता करना है कि एम्प्लॉय और उसका मैनेजर का नाम पता करना है मुझे। सो हाउ डू आई गेट दैट? यहां पर आप इनर ज्वाइन भी यूज कर सकते हो। अगर आप इनर ज्वाइन यूज करते हो तो कौन से रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको? फिर से एक बार पूछ रहा हूं मैं, अगर आप इनर ज्वाइन करते हो यू विल गेट ओनली रिकॉर्ड्स वेयर एम्प्लॉय हैज अ मैनेजर, वेयर एम्प्लॉय हैज अ मैनेजर। एग्जाम्पल अभी मैंने कल कुछ ये टेबल ड्रॉ किया था। सो यहां पर देखो, लेट्स से डॉन को कोई मैनेजर नहीं है, डॉन को कोई मैनेजर नहीं है। नाउ टेल मी, if I use inner join I will get only which records? 3 records, right? 3 या कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे? 3। कौन कौन से मिलेंगे? तीनों मिलेंगे, डॉन नहीं मिलेगा, राइट? अगर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट ज्वाइन में यू विल गेट चार रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। राइट ज्वाइन करेंगे तो 4। लेफ्ट करो राइट ज्वाइन, क्योंकि टेबल सेम ही है, लेफ्ट करो या राइट करो सेम टेबल ही है, तो इसलिए आपको सेम ही रिकॉर्ड मिलेंगे। और अब फुल ज्वाइन करेंगे, दैट टाइम यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स। सो यहां पर आई एम गोइंग टू गिव सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर मैनेजर आईडी इज नल। तो यहां पर एक रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है? तो मुझे यहां पर एक एम्प्लॉय है, उसका कोई मैनेजर नहीं है। आई हैव अ वन एम्प्लॉय विच डज नॉट हैव अ मैनेजर। आपके पास दो चॉइसेस है अभी। डू यू वांट ओनली एम्प्लॉयज हु हैज अ मैनेजर और यू वांट ऑल द एम्प्लॉयज लिस्ट एंड देयर करस्पॉन्डिंग मैनेजर नेम्स? So do that, this will give you, now if I do this, so you get 107 records, 107 records, total records are 107 और उसमें से एक एम्प्लॉय को मैनेजर आईडी नहीं है। Now I want select star from, स्टार की जगह हम दो ही लिखते हैं, एम्प्लॉय select star from employees, इसको बोलते हैं E1। Now I will say E1 dot first name as I will say employee name, then E2 या E2 dot, E2 अभी तक लिया नहीं हमने, दूसरा क्या चाहिए हमें? मैनेजर नेम। यू वांट मैनेजर नेम, तो मैनेजर नेम कैसे मिलेगा हमें? हाउ डू वी गेट दैट? इनर ज्वाइन एम्प्लॉइज E2, so E2 dot first name as ठीक है। सेलेक्ट E1 मतलब फर्स्ट वाला यहां पर, और E2 क्यों लिया मैंने? वाई हैव टेकन E2?
E2 मतलब मैं यहाँ पर E1 का फर्स्ट नेम और E2 का फर्स्ट नेम, E1 फर्स्ट नेम E2 फर्स्ट नेम, ऐसे क्यों? ठीक है। इनर जॉइन एम्प्लॉय टू, और किस फील्ड पर लगाएंगे हम? व्हाट इज द लिंकिंग कॉलम, व्हाट इज द कॉमन कॉलम? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी E2 डॉट मैनेजर आईडी। उल्टा हो गया। हाँ, ये किसके साथ रहेगा? उस आईडी के साथ। दिस विल बी एम्प्लॉय आईडी। हाँ, मतलब ऐसे देखो यहां पर दिस पर्टिकुलर थिंग यू आर गेटिंग, ये मैनेजर आईडी लिंक टू अनदर टेबल, ये E1 E2 ऐसे कंसिडर करो। E1 का ये मैनेजर आईडी, दिस विल बी इफ यू सी हियर E1 डॉट मैनेजर आईडी, ये वाला मैनेजर आईडी, एंड E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, इनका इक्वलिटी चेक होगा। और यहाँ पर मैं E डॉट फर्स्ट नेम, E डॉट फर्स्ट नेम, तो E1 वाला E1 का फर्स्ट नेम, सो दिस विल बी द फर्स्ट नेम विल बी प्रिंटेड, एंड देयर E2 डॉट फर्स्ट नेम, E2 डॉट फर्स्ट नेम मतलब किसका फर्स्ट नेम? मैनेजर का, यहाँ पर मैनेजर का आने वाला है। सो सी हियर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट, यू गॉट 106 रिकॉर्ड्स। कितने सारे? 106। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगा तो यहाँ पर कौन से इंप्लॉय मिले? You got only employees, you got only employees which has employee names who has manager, who has manager. Now employee names, all employees, all employee names and manager name. तो यहाँ पर आपने left join use करेंगे, यहाँ पर we'll use the left join. So we'll get 107, और वहां पर एक रिकॉर्ड है यहाँ पर नल, यहाँ पर राइट ज्वाइन भी करोगे तो you will get the same answer, you will get the same answer. Are we clear on this? मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ आपको यही क्वेरी पूछा जाता है मोस्टली। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज दे विल बी आस्किंग यू सिमिलर क्वेश्चन। कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया अभी तक? पूछा था, सिंपल क्वेरी पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, now I will ask a simple question. So there are 7 tables. So I will take 2 tables now, employee and department. Employee and department. So मुझे क्या चाहिए अभी? सिमिलर जैसे अभी किया हमने, सिमिलर क्वेरी है। मुझे एम्प्लॉई और उसका डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करना है। क्या करना है मुझे? एम्प्लॉई और उसका डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करना है। तो दोनों टेबल में क्या कॉमन है? डिपार्टमेंट आईडी. So department ID is the foreign key inside which table? Employee. तो डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू कहां से आने वाली है? डिपार्टमेंट टेबल। तो अभी आपको क्वेश्चन समझा क्या करना है? सो कैन एनीवन हेल्प मी गेट? इसमें भी सेम क्वेश्चन अभी, ऑल एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज हु हैज डिपार्टमेंट। सो गेट एम्प्लॉई हु हैज डिपार्टमेंट एंड इट्स नेम। क्या यूज करोगे आप? परफेक्ट। क्या यूज करोगे आप? इनर ज्वाइन। नेक्स्ट है आपका गेट ऑल एम्प्लॉइज, गेट ऑल एम्प्लॉइज। यहां पर आप क्या यूज करोगे? यहां पर यूज करोगे आप लेफ्ट ज्वाइन। सो कैन यू टेल मी द क्वेरी? मुझे क्या प्रिंट करना है? एम्प्लॉय नेम और उसका डिपार्टमेंट का नाम। सो हाउ डू आई डू दैट? ई इनर ज्वाइन
बहुत फास्ट है तो। ठीक, HR कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। जब आप स्कीमा नेम लिखते हो दैट इज़ गुड। यहाँ पर देखो inner join departments D on what is the column that is matching department ID। यहाँ पर देखो ये डिपार्टमेंट आईडी ये लिंक्ड हुआ है इस प्राइमरी की के साथ। सो हम इसको मैच कर रहे किसके साथ? डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी के साथ। सो वी आर कंपेयरिंग इक्वालिटी से के, सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी वेदर इट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी है इक्वल, तो रिटर्न लिखे आओ। तो अभी आपको पता होगा कि कितने सारे एम्प्लॉयज है जिनका डिपार्टमेंट नहीं है। आई विल जस्ट गेट दैट। सो कैन यू टेल मी समवन, सिंपल क्वेरी है। सलमान, कैन यू टेल मी द क्वेरी? बोलो। आई वांट एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव द डिपार्टमेंट। अरे मुझे get employees who are not associated with any department। बोलो। अरे ज्वाइन बीन कुछ नहीं यूज करना इधर, सिंपल एक टेबल से select start from employees where department ID is null। एक बंदा है, क्या नाम है उसका? किम्बरले। ठीक है, अब मुझे अभी टोटल एम्प्लॉयज कितने अपने पास? 107। 107 में से एक बंदे का डिपार्टमेंट नहीं है, तो अभी हमें मुझे क्या चाहिए? सॉरी, डिलीट नहीं करना है अभी, गेट करना है, डिलीट पे नहीं जा रहे अपन। डिलीट करना तो आप कर सकते हो, दैट इज फाइन। अब मुझे क्या चाहिए? ओनली एम्प्लॉइज हु हैज अ डिपार्टमेंट। ओनली एम्प्लॉइज हु हैज अ डिपार्टमेंट, मतलब दोनों में मैचिंग चाहिए। तो यहां पर इनर ज्वाइन होगा, दैट्स इट। और यहां पर मुझे क्या प्रिंट करना है? एम्प्लॉय का नाम ई डॉट एम्प्लॉय नेम एस एम्प्लॉय नेम। दूसरा क्या चाहिए? डी डॉट डिपार्टमेंट नेम एज फ्रॉम एम्प्लॉइज, और हमने ज्वाइन किया उसको। सिंपल, कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे अपन को? 100। 106 है, यस। इसमें कौन सा एम्प्लॉय नहीं है? किम्बरली नहीं है। चलो, अब मुझे क्या चाहिए? दूसरा वाला बंदा, मतलब सारे बंदे चाहिए, डिपार्टमेंट है नहीं वो। माई फोकस इज ऑन एम्प्लॉयज। व्हाट इज माई फोकस? आई वांट टू, तो यहां पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? लेफ्ट ज्वाइन। सेम क्वेरी, एग्जैक्टली सेम थिंग, नो चेंज। और इस बार मिलेगा आपको 107 रिकॉर्ड्स। है किधर ये? किधर गया किम्बरली? है क्या किम्बरली? हाँ है। चलो, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता आपको मैं। हाँ, एक एक करते हैं। मुझे पता करना है एम्प्लॉय का रोल क्या है। एम्प्लॉय का रोल क्या है? अरे उसका क्या टाइटल है? इंजीनियर है, क्या है? हाँ, कौन सा? अब यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास। क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, तो कौन सा ज्वाइन यूज करोगे? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन? इनर ज्वाइन से क्या मिलेगा आपको?
क्या मिलेगा आपको? जिनके पास कोई जॉब है वो, उनका कुछ टाइटल है। और लेफ्ट जॉइन से काम नहीं है कुछ भी, बेरोजगार लोग भी हैं। चलो बताओ क्वेरी। मैं अभी क्वेरी नहीं बताऊँ, कोई एक को बताता हूँ, मैं पूछता हूँ। कौन बता सकता है? शंभू, क्वेरी। हम्म। 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 ओके, सो लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन। ओके, so get all employees, we are looking for all employees with their job title. Select start from employees, all चाहिए मुझे, तो all employees किधर मिलेंगे आपको? employees में, so वहाँ पर left join, डिपार्टमेंट नहीं, लेफ्ट ज्वाइन, और एम्प्लॉयज़ को आप लिख सकते हो ई, और यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन जॉब, जॉब्स, एस जी, ऑन ई डॉट जॉब आई डी इक्वल टू जे डॉट जॉब आई डी। इससे क्या मिलेगा आपको? विल गेट एवरीथिंग। मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस क्या चाहिए? एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एस, दूसरा क्या चाहिए? उसका जॉब टाइटल। नहीं, लोग जॉब वाले लोग हैं इसमें, सारे हैं इसमें, मिक्स है। बेरोजगार कैसे? हाँ, बेरोजगार मतलब एम्प्लॉय है वो, सैलरी मिलता है, बस काम नहीं है। हाँ बताओ कैसे पता करेंगे? गेट ऑल एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव जॉब टाइटल। क्या है बताओ? एम्प्लॉयज वेयर जॉब आईडी इज नल। कोई नहीं है, सबके पास है कुछ ना कुछ। चलो अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, वही रिजल्ट वही मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको कोई है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेरी के लिए मैं लिख लेता हूँ। व्हाट इज द क्वेरी? गेट ऑल एम्प्लॉयज हु हैज जॉब। तो यहां पर इनर जॉइन, सिंपली 107 है। ठीक है, सिंपल। मुझे ये बताओ, एम्प्लॉयज हु आर फ्रॉम इंडिया, एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया। चलो, चलो मतलब वो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। एम्प्लॉय और उसका कौन सा कंट्री से, वो प्रिंट करके दो बस मुझे। एम्प्लॉय का नाम और उसका कंट्री का नाम।
मिला कुछ? अक्षय कॉन्ग्रेट्स फॉर L1 सेलेक्ट. L1 सेलेक्ट. अरे इतना उदास क्यों बोल रहा हूँ? अरे मैं, हाँ मिला कुछ? हाँ बताओ, अरे ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट. हाँ मल्टीपल ज्वाइंस वही करना है. यहाँ पर कितने टेबल ज्वाइन करना मुझे बताओ पहले. हाँ, आ, कितने टेबल्स है कनेक्शन? चलो आता, एम्प्लॉय से सीधा कहाँ पर जाओगे लोकेशन फाइंड करने के लिए? डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट मिले. या डायरेक्टली दूसरा कोई टेबल है जिसमें डायरेक्टली जा सकते हैं हम? डायरेक्टली डिपार्टमेंट के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है. डिपार्टमेंट के बाद हम कहाँ पर जाएंगे? लोकेशन. और लोकेशन के बाद कंट्री. चलो एक दो तीन चार. क्या करना है हमारा टारगेट? गेट all employees with their corresponding country name. चलो बताओ फटाफट. सेलेक्ट एम्प्लॉयज. ठीक है, यहाँ तक तो आ गए. चलो ई डॉट क्या चाहिए आपको? फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नेम. चलो ये तो आ गया बोला. हाँ, उसके बाद क्या ज्वाइन करोगे आप? इनर ज्वाइन या सारे चाहिए आपको? सभी चाहिए. जॉब से जा सकते कि हम? नहीं नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन. डिपार्टमेंट आईडी मैचिंग कॉलम है दोनों के साथ, राइट? सो यहाँ पर चलो मैं ही लिख लेता हूँ. चलो हाँ, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन एम्प्लॉय आईडी डॉट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी. लोकेशन आईडी है क्या इधर? लोकेशन आईडी हाँ है ना. हमने लिखा नहीं क्या लोकेशन आईडी एम्प्लॉय में? हाँ डिपार्टमेंट का है, सॉरी. हमको कहाँ जाना पड़ेगा? डिपार्टमेंट आईडी, माय बैड. हाँ चलो यहाँ पर आ गया अभी डिपार्टमेंट तक. अभी अभी सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये डिपार्टमेंट आईडी. हाँ, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी डॉट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी. तो ये इसका डिपार्टमेंट आईडी और इसका डिपार्टमेंट आईडी यहाँ तक आ गए. अभी यहाँ पर आपको क्या चाहिए? लोकेशन आईडी, लोकेशन आईडी और लोकेशन. अभी किसको मैच करना है? डिपार्टमेंट्स और लोकेशन. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? सारे डिपार्टमेंट्स के लिए चाहिए, सारे रिकॉर्ड्स के लिए. ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन क्या है वो? लोकेशंस एल नहीं, ऑन
डी डॉट लोकेशन आई डी डॉट एल डॉट लोकेशन आई डी। अभी इसके साथ हमें क्या चाहिए, लोकेशंस का कंट्री के साथ, लोकेशन द लेफ्ट ज्वाइन countries C on लोकेशन, नहीं कंट्री आईडी, हाँ सॉरी मैं भूल गया इधर, कंट्री आईडी सी एल डॉट कंट्री आईडी इक्वल टू सी डॉट कंट्री आईडी। और आपको कहाँ से क्या चाहिए बताओ मुझे, अभी कंट्री नेम चाहिए और सी डॉट कंट्री नेम एस चलो अरे सबका यूएस ही आ रहा है, नहीं नहीं बराबर है। हाँ उधर से ही लेके आया था मैं, यूके, हाँ किम्बरली है, आगे 107 लोग। हाँ चलो एक को हम बैक ट्रैक करते, उसको क्या हुआ अवधूत, क्या हुआ, ऑल गुड, वाई आर यू इन एग्रेशन, यू आर ऑलवेज इन एग्रेशन, मेरे से कोई गलती होगी क्या बाबा, माफ कर देना बस। हाँ बोलो यहाँ पर बैक ट्रैक करते हम, स्टीवन, स्टीवन को बैक ट्रैक करते, बैक ट्रैक कैसे करेंगे, एक एक जाके चेक कर सकते हैं हम, किसी कोई भी एक एम्प्लॉय ले लो चलो, क्या क्या डीबग, हाँ चलो बैक ट्रैक, हमारे पास चलो जूलिया, हाँ ठीक है जूलिया, हाँ जूलिया देखते हैं, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं हम, बैक ट्रैकिंग मतलब जूलिया कौन से कंट्री से है, यूएसए से है क्या नहीं चेक करते, ओके कैसे चेक करेंगे, बैक ट्रैक कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम लाइक जूलिया, दो है इसमें, दोनों देखते हैं 125, इसको एक काम कर सकते हैं ना, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम से हम उनको सॉर्ट करेंगे ना, तो पता चलेगा हमको कोई यूनिक है क्या। हाँ चलो डेन चेक करते, एक ही है डेन, उसका आईडी भी चेक कर सकते हैं हम, व्हाट इज द आईडी एल्सो ई डॉट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं कि हमारा सही आया नहीं, मतलब आप डिबगिंग बोल सकते हैं इन शॉर्ट, 114, ओके 114 विल गेट एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 114, चलो देखते हैं उसका, उसके बाद उसका क्या है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी क्या है उसका 30, सो हाउ डू गेट द डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी उसका डिपार्टमेंट कैसे चेक कर सकते हैं हम, डिपार्टमेंट आईडी क्या है 30, चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलो बोलो, एक 10 मिनट में कॉल करोगे आप सर,
10 मिनट में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्या था डिपार्टमेंट बाय, और क्या था वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 30, लोकेशन आईडी क्या है उसका 1700। चलो लोकेशन आईडी कहाँ पर मिलेगी आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशंस वेयर लोकेशन आईडी इक्वल टू, ओके लोकेशन आईडी क्या है 17, तो उसका क्या है कंट्री कोड यूएस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज वेयर कंट्री कोड इक्वल टू यूएस। ठीक है यूएसए से है वो, समझे। चलो एक और, आई वॉन्ट एम्प्लॉय हु हैज़ हाईएस्ट सैलरी, मतलब मेरे हर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा किसको सैलरी है, या सिंपल और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, चलो उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता हूँ मैं। सो आई वॉन्ट एम्प्लॉयज एंड आई वॉन्ट देयर जॉब टाइटल एंड व्हाट इज देयर, सैलरी तो इसी टेबल में राइट, ओके। हाँ एक सिंपल, चलो सिंपल, एम्प्लॉयज जिन्होंने कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम किया, आई वॉन्ट एम्प्लॉयज हु हैज़ वर्कड मोर देन 5 years, उनको मुझे गिफ्ट देना है। चलो बताओ, सिंपल क्वेरी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, 2 ही टेबल है अभी, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉयज, सॉरी, हाँ क्वेश्चन ये है कि आई वांट एम्प्लॉयज हु हैज वर्कड मोर देन 5 years। गेट ऑल एम्प्लॉयज हु हैज वर्कड फॉर मोर देन 5 years। आपको पता होगा एक ग्रेचुइटी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेचुइटी क्या होता है ग्रेचुइटी, हाँ मतलब कंपनी एज अ ग्रेटिट्यूड, जो लोग 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं एक ही कंपनी में, तो उनको एक सम बल्क में अमाउंट मिलता है, लम सम अमाउंट, उसे ग्रेचुइटी बोलते हैं, तो वो पे आउट करना है अपन को। और कंपनी इतनी होशियार है कि एक दिन चलो बाद में बोलते हैं उसको। यस चलो फटाक से बहुत सारी क्वेरीज कवर करना है। गेट ऑल एम्प्लॉयज हु हैज वर्क फॉर मोर देन 5 years। टेबल देखना, ये टेबल देखो, चलो अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। कितने टेबल के साथ लिंकिंग है, 3 कहाँ पर, ओके नहीं आई थिंक उधर वो जॉब हिस्ट्री और एम्प्लॉय दोनों में देखो टेबल आप, है ना उधर, चल सकता है ऐसे। करने ही जाने का आप लोग को, मेरे पास अभी कोई बैच नहीं है, सो आई एम अवेलेबल टिल 7 o'clock। सो
बोलो आज खत्म करते हैं आज इसको। हाँ बताओ फिर। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ई। अब मुझे क्या चाहिए, बस एम्प्लॉय का नाम चाहिए, एम्प्लॉय ई डॉट फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई, देन किसके साथ, जॉब हिस्ट्री ऑन अभी यहाँ पर बस उसका नाम चाहिए ना, और उसका आप सर्विस भी दे सकते हैं हम उसको, कितना टाइम उसने काम किया, कैसे पता करोगे आप? जे डॉट डिफरेंस, डेट डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन। अरे मुझे डेट डिफरेंस देना है ना, यहाँ पर भी दे सकते हैं ना डायरेक्टली। वेयर क्लॉज नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, माइनस जे डॉट इन डेट। एक मिनट, चलो आप बताओ मैं क्यों लिख रहा हूँ, छोड़ो। आप बताओ, चलो छोड़ो, छोड़ दो, मैं बोलो। हाँ हाँ, कॉलम लिखना है क्या? हाँ ठीक है, एम्प्लॉय जॉब हिस्ट्री कॉलम्स, ये देखो डेट है पूरा, डेट डेट फॉर्मेट है पूरा। वेयर क्या कर सकते हैं, जे डॉट इन डेट माइनस जे डॉट स्टार्ट डेट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, नहीं फाइव नहीं चलेगा, ग्रेटर देन, लेकिन किससे, ये आपको क्या मिलेगा आज? बोलो फटाफट यार, जॉब हिस्ट्री है राइट। डेट्स देखो ऐसे आया, स्टार्ट डेट माइनस ये वाला, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टार्ट डेट माइनस इन डेट एज टेन्योर, ये माइनस कुछ दिखा रहा है, डेज में आ रहा है ये, डेज में आ रहा है ये, इसमें आ रहा है 40,000, ये क्या, नहीं डेज में आ रहा है 89 से लेके 93, इतने सारे डेज तो नहीं आना चाहिए, कितना सारा, 5 साल है कि इसका, 4 साल, 93 से लेके 97, 93 से 98,
तो ये 40,000 कहाँ से आ रहा है? ये फिर ये आर्स में आ रहा है क्या ये? 5,000 नहीं। यस, आर्स, मिनट्स, डेज। डेज तो इतने नहीं रहेंगे, इट विल नॉट बी दैट मेनी डेज। हाँ बोलो बोलो। अरे हो गया आपका, क्वेरी हो गया, जस्ट डिफरेंस निकालना है। क्वेरी हो गया आपका ये वाला, द क्वेरी इज डन। हाँ, लास्ट वाला। लास्ट डिजिट। लास्ट डेट इज, हाँ, 198909211993 डेट डिफरेंस कितना हो रहा है? 6 years, नॉट 6 years, 4। चलो, लेकिन इसे आप ऐसे ईयर माइनस नहीं कर सकते क्या? डेट डिफरेंस है, डेट डिफरेंस। क्या हुआ? डेज में आ रहा है वो, डेज में। कहाँ पर? ओके, नो। अरे चलो, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो फाइन। वी आर गेटिंग इन द नंबर ऑफ डेज। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज है आपका पूरा। डिवाइड बाय 365 कर सकते हैं। 4.2, हाँ चल जाएगा, दिस इज ऑल्सो फाइन। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। चलो, दो ही लोग हैं। अरे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस डेट डिफरेंस है। ठीक है। चलो, वन लास्ट क्वेश्चन, देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट। मुझे चेक करना है, मेरा गांव वाला मैनेजर कौन है? अरे हाँ, जो भी है, सिटी गांव जो भी है, मतलब ऐसा देखने कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, एम्प्लॉय और मैनेजर सेम सिटी से हैं। क्या क्वेरी है आपका?
गेट ऑल एम्प्लॉइज whose manager's city is same. Whose city is same as their करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, देयर करस्पॉन्डिंग, नहीं तो कोई भी मैनेज का उठा के लेके आओगे आप. इंग्लिश क्लास है क्या किधर? इंग्लिश का क्लास है कि किधर कोई लेता है क्लास? ठीक है. गेट ऑल एम्प्लॉइज हुज सिटी इज सेम एज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मैनेजर्स सिटी. चलो वन लास्ट क्वेश्चन है. एक ही टेबल है. नहीं, एक सिटी तो उनका अलग अलग है. इधर सिटी किधर मिलेगा इनका? चलो एक बहुत, चलो चलो ये एम्प्लॉय ठीक है, एम्प्लॉय है, उसका मैनेजर, देन चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. अभी एक दो तीन टेबल में जा रहे हैं हम, तो मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय और उसका सिटी नेम प्रिंट करो पहले. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसका सिटी नेम, ये पहले करो, फिर दूसरा करते अपन. चलो ये थोड़ा उसके नेक्स्ट है. गेट ऑल एम्प्लॉयज विद देयर आईडी, नेम एंड सिटी. चलो ये करो. उसके बाद अपन ये करते हो. फिर यहाँ पर भी थोड़ा, हाँ देखो एक बार दो क्वेरी करते हैं, देन योर जॉइंट्स विल बी एबल टू, आप लिंक कर पाओगे. तो क्या चाहिए अपन को? एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम और उसका सिटी. चलो, और ऐसा भी हो सकता है कोई लोगों का सिटी रिकॉर्ड कुछ ने दिया नहीं, हो सकता है ऐसे भी है. तो मुझे सारे एम्प्लॉय का चाहिए, तो उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन करोगे आप. बन गया? अरे लास्ट जैसे ही हो रही है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं. अपन तो उसके एक लेवल कम ही है. पहले एक दो तीन चार, चार पांच लेवल तक गए थे, यहाँ पर उससे एक लेयर कम ही है. बन गया? बोलो फिर. हाँ, सेलेक्ट एम्प्लॉइज ई, बोलो तब तक मैं एक कॉल करता हूँ.
हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, रिगार्डिंग क्या है, थोड़ा कंक्रीटली बताएंगे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। आप मुझे मेल कर देंगे क्या डिटेल्स, मैं एक बार गो थ्रू कर दूँ फिर। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ बोलिए। हम्म। ठीक है, मैं करता हूँ चेक सर। ठीक है सर, ओके थैंक यू। एक 5 बजे, 5 बजे मेरी क्लास में हूँ सर अभी मैं। 5 बजे करेंगे। हाँ ठीक है। सॉरी गाइस, बोलो। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज ई, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन। ठीक है। ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। कहाँ तक आए, डिपार्टमेंट आई डी। यहाँ से कहाँ जाना है हमें, फिर लेफ्ट ज्वाइन कर दे। लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, लोकेशंस ऑन डी लोकेशन आईडी डॉट, करेक्ट है। इसके बाद लोकेशन आईडी तक आ गए, बस हो गया अभी, रेट। ठीक है। हाँ अभी यहाँ पर सिटी चाहिए। ई डॉट एम्प्लॉय आई डी एस ई एम पी आई डी, देन ई डॉट फर्स्ट नेम, देन एल डॉट सिटी एस। आगे 107 लोग का। और ऐसा कोई है जिसका कोई सिटी नहीं है? हाँ ये है, किम्बर्ली है। ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो बताएगा उसको चॉकलेट, जो बताएगा उसको टपरी पे चाय मेरे तरफ से। चलो। ठीक है। कुछ टेम्पटिंग ऑफर दे दूं क्या हमको? लास्ट ट्राई करो, देन। हाँ हाँ, क्वेश्चन फिर से एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है, एम्प्लॉय और उसका मैनेजर का नाम। एम्प्लॉय और मैनेजर चेक करना है, एम्प्लॉय का सिटी और मैनेजर का सिटी दोनों का सेम है, ऐसे लोग चाहिए मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मैनेजर दूसरा कोई है। मतलब मेरा मैनेजर लेट से तोहिद का मैनेजर मैं हूँ, और लेट से अक्षय का मैनेजर है लेट से सलमान, और हम दोनों का सिटी सेम है। तो आपको किसका चेक करना है, करस्पॉन्डिंग मैनेजर का, दूसरे के मैनेजर का नहीं चेक करना है। तो आप कंपेयर क्या करोगे, कंपनी में कौन कौन से मैनेजर है सबका गाँव ढूंढोगे? नहीं, आपको चेक क्या करना है, एम्प्लॉय और उसका करस्पॉन्डिंग मैनेजर। हाँ चलो बताओ अभी।
अरे गप्पे नहीं लड़ा आंसर फाइंड करना। चलो एम्प्लॉय का तो पता चल गया आपको, अब मैनेजर का पता करो। सिटी। चलो इसको और थोड़ा एक और लेवल नीचे लेके आता हूं मैं। अभी आपने क्या किया, एम्प्लॉय का सिटी निकाला, अब बस मैनेजर का सिटी निकालो। पहले तो जो मैनेजर से पहले लिस्ट करो कौन कौन मैनेजर है इसमें। जो भी मैनेजर है उसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए, उसका नाम चाहिए और उसका सिटी चाहिए। So get all managers with ID, name and city। चलो ये सिंपल है। अरे अभी तो बताओ, सिंपल कर दिया मैंने अभी। चलो सिटी हटा दे दो, चलो अभी के लिए सिटी हटा दे दो। चलो हाँ ये दो बताओ। चलो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज ई। चलो ई इनर जॉइन एम्प्लॉइज ई टू। हाँ ऑन करेक्ट है। नहीं 107 लोग आए। ई वन डॉट देन ई वन डॉट फर्स्ट नेम एस नेम। ध्यान से बोलो, दो ही, चलो दो ही ठीक है। इससे क्या मिलेगा आपको, तो कैसे मिलेगा आपको। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, ई टू। 106 नहीं, ये सारे कौन है। चलो मैं आपको कंक्लूजन दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्या चाहिए आपको यहाँ पर, मैनेजर आईडी राइट, वेयर मैनेजर आईडी इज नॉट नल। और इसका काउंट बता देता हूँ मैं आपको। डिस्टिंग चाहिए मुझे, क्या चाहिए पहले तो, डिस्टिंग क्या चाहिए मुझे, उसका मैनेजर आईडी। उसका काउंट भी दे सकते हो, या इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, 18 मैनेजर हैं। अब मुझे इनका नाम चाहिए। कितने लोग हैं, 18। अभी कैसे कर सकते हो आप, यहां पर डिस्टिंग कर सकते हैं इधर, देखो करके। हाँ आ गया ना। चलो अभी सिटी